हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud which you can go and download in the Play Store. This application is very helpful to you, that will help you in our preparation. All the PDFs, all the current affairs, all the material, all the quiz questions are provided by us on this particular application only. So if you are a government job aspirant, you must have this Carriers Cloud application. Now, once you have downloaded the application, you will move and open it. Then you have to log in with your Gmail ID. Once you have logged in, you will be shifted to this page. Now, if you have purchased our course, then with the course will be providing you daily PDF. In this daily PDF will be giving you multiple questions of the daily, as well as 20 questions quiz will be provided you on the daily basis. Then if we shift to weekly, we will be providing you with the weekly information also, such as weekly quiz of 50 questions each, then weekly PDF combining of whole week's important current affairs. Then if we are talking on monthly basis, we will be doing same on the monthly basis also, that will be providing you with a compiled PDF of the whole month's current affairs that are way important to you. This, if you are in English student, English language student, then you will be provided with English, and you can switch language between English as well as Hindi. Then you should also know we help aspirants to prepare for banking exams also. Multiple quiz questions will be provided you, multiple quiz will be provided you on the daily basis, on monthly basis, on weekly basis, so that it will boost your confidence. Then we'll be providing you information related to various banking exams also. And apart from this, we have started an initiative that is very helpful, that providing you questions with topic wise, such as apps and web portals, important days, books and authors, obituary, national affairs, international affairs, important days, sports, defense, everything. Each topic will contain individual information of that particular month that will boost your preparation to a next level. This is very important. These topic wise PDFs are very important. This will help you very much in boosting your preparations. Alright friends, so you should also know, if you use our code Vikas10, we will help you by giving extra 10% discount. So go grab this offer, this will help you a lot. This is a very useful application for an aspirant. So I urge you to go and download and check our plans. तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनके निधन हो गया दिसंबर मंथ में, उनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहली जो पर्सनैलिटी है वो है जनरल बिपिन रावत। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं, क्योंकि इनका भी रिसेंटली निधन हो गया था दिसंबर मंथ में। तमिलनाडु के कोन्नूर डिस्ट्रिक्ट में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जो कि इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर का नाम भी याद रखना। इस हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे बिपिन रावत सर अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड 11 अदर लोग थे डिफेंस पर्सनल, जो कि जिनकी डेथ हो गई इन दिस प्लेन क्रैश। ऑलराइट, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ एक सर्वाइवर बचे थे, वो थे कैप्टन वरुण सिंह, वॉज द लोन सर्वाइवर इन दिस पर्टिकुलर क्रैश। तो इंडिया के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे वो कौन थे? बिपिन रावत। इनको चीफ ऑफ डिफेंस 2019 में बनाया गया था। ऑलराइट, ये तीन चीज़ इनसे रिलेटेड याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन? के रोशैया जी। इनका रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है, याद रखना। ये क्या थे? फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जिनका निधन हो गया। ये 88 ईयर्स के थे जब इनका निधन हुआ। हैदराबाद तेलंगाना में इनकी डेथ हुई। इनका जो जन्म था वो 4 जुलाई को हुआ था 1933 में। वेमूर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यह है के रोशैया जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पॉलिटिशियंस एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। ये है RL जलप्पा जी। RL जलप्पा जी की बात करें तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी रह चुके हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल भी ये रह चुके हैं, ठीक है। अभी इनका निधन हो गया है
कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में इनका निधन हो गया है। ठीक है, 19 अक्टूबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। बेंगलोर कर्नाटका में ही इन्होंने जन्म लिया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इनको 2015 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा, और जो वो अवार्ड था वो था डी देवराज यूआरएस अवार्ड। ठीक है, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने जो वर्क किया था, डेवलपमेंट की थी इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने जो वर्क किया था, इनका कंट्रीब्यूशन था, उस वजह से इनको डी देवराज यूआरएस अवार्ड से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना इनको, पद्माश्री अवार्डी नंद किशोर प्रस्ती जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको नंदा सर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नंदा सर के नाम से ये फेमस थे, इनको बोला जाता था। एंड इनको कौन से पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी वेल नोन टीचर हैं। अगर पूछा जाए ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो नंद किशोर प्रस्ती जी ये टीचर थे आपके, एंड इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि इन्होंने एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था। इनका जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन फील्ड में, उस वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। इनका अभी देहांत जो हुआ ये ओडिशा में हुआ था। ठीक है, ये इनका जो बर्थ हुआ था वो भी ओडिशा में ही हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली वीमेन साइकाइट्रिस्ट शारदा मेनन जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, एक तो इंडिया की पहली वीमेन की बात की जा रही है, और इंडिया की पहली वीमेन जो कि साइकाइट्रिस्ट थी वो थी शारदा मेनन। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ भी थी। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कौन थी? शारदा मेनन। और इंडिया की पहली वीमेन साइकाइट्रिस्ट वो भी कौन थी? शारदा मेनन। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना है। एंड इनका अभी निधन चेन्नई तमिलनाडु में हो गया है। ऑलराइट, एंड इनको पद्मा भूषण 1992 में मिला था। ठीक है, किसके लिए? सोशल वर्क के लिए इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 1992 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैंगलुरु कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था, शारदा मेनन जी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट की, आपने इनको कई बार न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, विनोद दुआ। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ये 67 ईयर्स ऑफ एज थी इनकी जब इनका निधन हुआ, विनोद दुआ जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, याद रखना। ठीक है, इनसे रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपको देखनी है कि सबसे पहले 1996 में ये पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट बने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट बने, जिनको रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखना, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट थे। 1996 में किया गया था इनको। इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1954 को। ठीक है, इनको पद्मा श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है जर्नलिज्म के लिए 2008 में। और एक अवार्ड और होता है रेड इंक अवार्ड। रेड इंक अवार्ड ये आपका जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन जर्नलिज्म। 2017 में इनको रेड इंक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीतारामा शास्त्री जी की। ये एक काफ़ी फेमस तेलुगु लिरिसिस्ट हैं। ठीक है, इनका अभी निधन हो गया है। कौन है ये? सीतारामा शास्त्री जी। ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 66 की एज में इनका निधन हो गया। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में निधन हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 20 मई 1955 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ऑलराइट, और जननी जन्मभूमि, इनमें इस मूवी में जो कि के विश्वनाथ के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, इसमें इनका पहला सॉन्ग आया था। ठीक है, तो ये तेलुगु फिल्म लिरिसिस्ट हैं और एक पद्माश्री अवार्डी भी, याद रखना। इनको किस अवार्ड, पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पद्माश्री से। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्यसभा के एमपी बिहार से महेंद्र प्रसाद, इनका निधन हो गया है। ठीक है,
अगर हम महेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के बिहार से। किस पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में? ये जनता दल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिहार की जो जनता दल पार्टी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं महेंद्र प्रसाद। इनका निधन हो गया। इनको एक किंग के नाम से भी जाना जाता था, ये और याद रखना आपको, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1940 को। बिहार में इन्होंने जन्म लिया था। ऑलराइट, नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिवीजन मैं आपकी कराना चाहता हूँ इसकी। के रोसैया जी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये फॉर्मर गवर्नर थे तमिलनाडु के एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ये आंध्र प्रदेश के। इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देशमोहन टूटू की। देशमोहन टूटू काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहने वाली है, आपको इनका याद रखना है क्योंकि इनको अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 90 इन केप टाउन, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज विनर हैं ये, नोबेल प्राइज विनर कौन? देशमोहन टूटू, ठीक है। किस लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। जैसे गांधी जी ने हमारे यहाँ पे मिल वर्कर्स के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, वैसे ही आप समझ सकते हैं इन्होंने जो अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ब्लैक्स बाय द वाइट इन साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ इन्होंने बात उठाई थी। उनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। नॉन वायलेंट अपोजिशन में थे ये साउथ अफ्रीका के ब्रूटल अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ। ऑलराइट, तो इनको इसी वजह से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1984 में और इनका भी निधन हो गया है। तो ये कौन है? देशमोहन टूटू। नेक्स्ट हम फॉर्मर गीक प्रेसिडेंट की बात करेंगे, वो है कार्लोस पेपोलियस। कार्लोस पेपोलियस, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ये 2 टर्म तक प्रेसिडेंट रहे थे ग्रीक के। इनका जन्म भी ग्रीक में ही हुआ था एंड 2005 से लेके 2015 तक ये PASO के पार्टी से बिलोंग करते थे एंड ये प्रेसिडेंट थे। फॉर्मर 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे थे 2005 से 2015 तक अंडर पेशोक पार्टी। ऑलराइट, इनका जन्म 4 जून 1929 को हुआ था। ग्रीक में ही इनका जन्म हुआ था और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, इनके अलावा मैं आपको 2-3 नेम आपको और याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है मार्टिन जे शेरविन, ठीक है। ये एक अमेरिकन स्कॉलर है ऑफ एटॉमिक वेपन्स। इनका भी निधन हो गया है रिसेंटली, ठीक है। इनको याद रखना, पुलित्जर प्राइज से सम्मान किया जा चुका है फॉर हिज बुक, क्योंकि पुलित्जर प्राइज किस में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है। ये याद रखना पहली चीज, मार्टिन जे शेरविन। दूसरे व्यक्ति आपको याद रखने हैं रिचर्ड रॉजर्स। रिचर्ड रॉजर्स ये इटली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड इनको प्रिट्जर, ये तो है पुलित्जर प्राइज जो कि लिटरेचर में दिया जाता है, मैं बात कर रहा हूं प्रिट्जर प्राइज की जो कि आर्किटेक्ट को दिया जाता है, ठीक है। रिचर्ड रॉजर्स जो कि आर्किटेक्ट थे, इनको भी रिसेंटली नोबेल प्राइज फॉर आर्किटेक्चर मिला था इन 2017। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था इनको। ऑलराइट, जिसको ये जो आपका प्रिट्जर प्राइज होता है ना, इसी को नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है, ये याद रखना। और नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर में सेपरेटली आपका नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, इसी वजह से नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर क्या होता है आपका? प्रिट्जर प्राइज। तो वो कौन है? रिचर्ड रॉजर्स, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। इनका भी निधन हो गया है। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam and many others detail. Apart from this, you can see here, we are covering the whole syllabus here like data analysis on D3, then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare that will help you
or they are the expected questions that will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.